बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। ये वो नौजवान है जिनको आज पूरी दुनिया के लोग तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने पाक फौज रेंजर के साथ मिल के ड्रोन को गिराया। ये सिविलियन सादा कपड़ों में जो आप वीडियो देख रहे हैं वो ये वाले शख्स हैं। इन्होंने अपनी गन से ड्रोन को गिराया। गन कहाँ से ली, ये कौन है और वहाँ कैसे पहुंचे थे, सब कुछ इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम की ताड़ा? मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद आसिफ। उर्दू आंदी है, पंजाबी आंदी है, इंग्लिश आंदी है? बात अपनी ज़बान सराइकी। अपनी ज़बान सराइकी। ते ए किस तरह मौका मिलिया कि तुसी ड्रोन गिराई ते और गन किना दी सी? बस सारे यार बैठे थे उत्ते ड्रोन आ गए। तुसी ए किथे बैठे हुए सी? उत्ते बॉर्डर के नजदीक ही आए। अच्छा, आए ड्रोन आया ते देखिया पहले तुसी ड्रोन आया? नहीं ऐसा नहीं देखा, आवाम देखा ऐसा होते सामने बैठे बैठे भाई आवाम बहुत है उसी के लिए दिए पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, फिर ऐसा ही उत्ते बैठा है तो ड्रोन आया बता दे। नाम की ताड़ा ते केड़े इलाके न चल लगे? नाम मोहम्मद आसिफ खान है, जिला मियां वाली, कौम गुड्डी खैर मौदा नरोले चराने। अच्छा, मियां वाली तो लाहौर आए हो? हां जी। ते करदे की हो? इत्थे सिक्योरिटी गार्ड ही हो। सिक्योरिटी गार्ड हो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਬਈ ਇਹ ਫੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਫੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ? ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਾਈਫਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਮਿਲ ਦੇ, ਰਾਈਫਲ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 7 ਫੈਰ ਕੀਤੇ, 8ਵਾਂ ਫੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਂ ਕੇ ਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ, ਜਿਤਨੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਸਾਰੀ ਉਡਾਈ ਭੱਜ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੇ? ਅਸਾਂ ਹੀ ਦੌੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਕੀ ਆਏ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਰੇਂਜਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਬਸ ਸਲੋ ਹੀ ਆਈ, ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਈ? ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਗਿਰਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਥਰੋਈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰ ਥਰੋਈ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਵਾਦ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਬੰਮ ਸ਼ਮ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਸ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸੀ ਨਾ। ਆਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਜਣੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਲਫੇਰ ਥੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ से ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਅਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ? ਅਸਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਡਰੋਨ ਇਧਰ ਭਜਵਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰੋਗੇ? ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖਾਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? मोबाइल तो उससे नहीं देखी है मेरा, मैं तो इतना शौक ही कौन है मीडिया से आने का।
ये भाई ने आके जाता है लाजमी आवना ही आवना। ये त्रा ड्याड़े मेरे पिछू गदा रहे ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ? ਬਸ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ हैं। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ खेलते हैं? हाँ जी। नाजरीन ये वो शख्स हैं जिन्होंने निशाना लगा के ड्रोन को गिराया। इनकी वीडियो जो है वो दुनिया भर में देखी जा रही है, इंडिया में भी इनकी मकबूलियत के चर्चे हैं। ये इनके साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये उस टाइम क्या कर रहे थे और वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया और कैसे वीडियो बनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। वीडियो आपने बनाई और वीडियो वायरल हो गई। जी जी। तो वीडियो का ख्याल कैसे आया और उस वक्त कंडीशन क्या थी आपकी? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं ना, नाम तो मेरा सलीम है, मैं किंग कैदी के नाम से मशहूर हूँ नेट पे भी, और मैंने जेल में काफ़ी मल्टी स्किल सीखी जिनमें कंप्यूटर के साथ अभी मैं कंग फू और मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक करा रहा हूँ बॉर्डर एरिया में। पाक फौज के साथ मेरा बहुत पुराना बयानिया है कि उसके साथ होना चाहिए आवाम को। अब वहाँ ना जहाँ मैं वो कराता हूँ ना मार्शल आर्ट कराता हूँ, वहाँ ऊपर ड्रोन उड़ रहा था पार्क के ऊपर। जब वहाँ आता ना ये तो पहले गलतफहमी इंडिया दिल से निकाल ले कि हमारी आवाम को खौफजदा होती है। मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ कि किस तरह वो उसके टुकड़े करते हैं और किस तरह टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक एक मोटर भी नहीं आती पाकिस्तानियों को। यकीन मानिए मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जहाँ कारबीनों से, पिस्टल से, वो क्या नाम है, उससे आम हथियार सामान्य में उससे वो उसको ना गिराते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी ना वीडियो बनाई और एक ये वजाहत भी कर दूं कि वो रेंजर के एहलकार नहीं थे, वो हमारा कोई और इदारा है। ठीक है, वर्दी मिलती जुलती है। तो वो जब मैंने इसकी वीडियो बनाई, इसने ना ऊपर कोई 7वां 8वां फेयर उसके ना फैन में लगा। मेरे होते मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ कितने ड्रोन वहाँ गिर चुके हैं। अब मैंने जब वो वीडियो बनाई और वो जितने भी दोस्त एंकर जो मेरा इंटरव्यू करते थे उनको मैंने शेयर कर दी। फिर मैं पीछे भागा हूँ बाइक पे, वहाँ गया हूँ तो आप हालत देख लें कि उसकी लाश उठाई हुई किस तरह से पाकिस्तानियों ने, और उसकी मौत। हाँ जी, वो इंटरव्यू तक नहीं देती। इसको मैं 2 दिन मिन्नतें करके फिर मीडिया पे लाया हूँ। मतलब ना ये वहाँ बिल्कुल मशहूर सारे, लेकिन ये कहते हैं बात जी क्या है, और उन लोगों ने टुकड़े करते हैं उसके। एक ड्रोन में आपको वीडियो भेजता हूँ, दरख्त के नीचे गया, 10 फुट लंबा है, 25 फुट वो है, उसके ऊपर लड़के ने छलांग लगा दी। ये सारे बेकार ड्रोन है उनके पास, बेकार कचरा। ईमान के आगे क्या चीज टिकती है? तो ये चीज है। तो वो इतनी वायरल हुई कि एंकर ने दिन रात मेरा जीना ही हराम कर दिया कि भाई वो इंटरव्यू कराओ तो इसी तरह। और आपसे माजरत कि आपको इतना टाइम, और कौम को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि इसराइल एक यहूदी मुल्क है और उसने अपनी जो नस्ल है ना, पूरा उसका जो है अवाम, उसको मार्शल आर्ट में ग्रेजुएशन होना लाजमी करार दिया है। और हम मुसलमान होकर क्रिकेट के पीछे, बैडमिंटन के पीछे हम पर बहुत ही बुरा समय आ रहा है। और यकीन मानिए अपने बच्चों को इस फन में ट्रेन करें कि अगर वो अपनी जान बचा लें। और यकीन मानिए मैंने जेल में इतनी ज्यादा स्किल सीखी, वाहिद पाकिस्तानी कैदी हूँ जिसे सलमान खान ने मेरे स्केच देख के अप्रिशिएट किया। मैं स्कूल चलाता हूँ, किंग BFX स्कूल, जहाँ मैं सिखाता हूँ। तो मैंने बचपन में एक चीज सर जी देखी थी, वो नाजरीन को बता दें। हलाकू खान जब हमला इसी तरह करता था जिस तरह इसराइल कर रहा है, इससे भी ज्यादा बर्बियत है। तो जब भी वो पहुंचा बगदाद में तो मुसलमानों का एक मोटा सा आलिम सामने आया है और वो कहता कि हलाकू खान मुझे माफ कर दे, तेरा दादा चंगेज खान उलमा को माफ करता था। मैं कहता हूँ सर जी उसके ये अल्फाज उस खबीस काफिर के सोने से लिख लो। उसने तलवार उठाने से पहले एक बात की, उसने कहा तुम अपने गाइड का यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज भूल गए, जान बचाने का फन नहीं सीखा मुल्ला जी, और सर उड़ा दिया। तो मेरी पूरी कौम को इल्तिजा है कि ये फजूलियात में अपने बच्चों को, मेरा बच्चे मैं शेयर करता हूँ कि 5-5 साल के इतने हैवी कमांडो तैयार कर रहा हूँ कि मेरी फौज को, मेरे वतन को, मेरी रेंजर को जब भी जरूरत पड़े मेरे नौजवान तैयार हैं। यकीन मानिए मेरे तो कौम तो पहले ही तैयार है, आपने देखा नहीं जंग में कौम ने वो है, लेकिन हमें फिजिकली और ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है टेक्नोलॉजी। यकीन मानिए
मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के बड़े ड्रोन, आप वीडियो में दिखाना लाजमी। लड़के ऊपर छलांग लगा के पकड़ा है, उठा रहे हैं, हालांकि 25 किलो उसके अंदर बारूद है, कोई डर नहीं, बैटरियां निकाल रहे हैं, इतनी बेरुमती कर रहे हैं ड्रोन बेचारे की ना कि उसकी जो बैटरियां है ना, क्या कर रहे हैं, उसको इबरत का निशान बना रहे हैं। इबरत का वो कह रहे इतनी बेइज्जती हो रही है कि जितनी फ्रांस के तियारे की भी नहीं हुई, उसके पंखे निकाल के ले जाते हैं। जब अब इंटरव्यू करोगे ना तो वो कहेंगे नहीं भाई, और वीडियो देख ले, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये हिसाब किया। जब आपने देखा सुबह को कि आपकी बनी हुई वीडियो वायरल हो गई है, तो जी, फिर क्या ख्यालात थे, क्या सोचती? मुझे बड़ी खुशी है, एक तो मैं स्पीड से वायरल हो रहा था, ऊपर से ये भाई की वीडियो की तो पूरी दुनिया में वायरल होगी, तो वहां से मेरे इंडिया को कोई पैगाम देंगे? हाँ, इंडिया को ये पैगाम दूंगा कि तेरा जो पाला है ना मोदी, ये सुन ले, ये उस कौम से नहीं है, सबसे बुज़दिल तेरी कौम है। और एक यकीनी बात है, दुनिया में बुज़दिल तरीन फौजें अमेरिका की, यहूदियों की, मैं जेल में रहा हूँ, हाईस्कोर्ट की जेल थी, और यकीन मान वहाँ मुजाहिद भी सारे कुछ बनते, तो बताते हैं कि जब अमेरिकी फौजियों के पास असला खत्म हो जाता है ना, ये बच्चों की तरह रोते हैं, चिल्लाते हैं। यही हाल इन इंडियन का भी है। आपको पता है कि उनके पीछे जब ये टकरा हुआ ना, जितनी वो गलतफहमियां मेरे पर फैला रहा है, तो आगे से उनसे कुछ नहीं, उनके भाग जाते हैं पैल्टों से, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी हो। अब तो मोदी के जोक भी बन रहे हैं, हम तो एक एनिमेशन बना रही मेरी कजन, जिसमें वो टूटा जहाज ना वो मोदी देने गया फ्रांस वाले को, और वो कह रहा है कि जी सर जी डब्बे च टूटा निकला सी। तो इस कौम से, लाहौरियों से, पंजाबियों से मोदी बच जा बेशरम, बच जा, वरना तेरी टेक्नोलॉजी तुम्हें, बस मैं लफा नहीं कहना ज्यादा, क्या अशर करेंगे बात कर देगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, मौलाना के बाद।